So now till now whatever we have discussed, if anyone feel any doubt, any confusion, then kindly let me know. अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो पढ़ाया है आपको, उसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है. Take 30 seconds, let other people join, and in these 30 seconds, if you have doubt, then kindly let me know, and I will explain that. All of you mute yourself. जब आपको कोई डाउट हो, पूछना हो, तभी आप लोग अपने आप को पूछिए. ओके, तो नाउ कोई डाउट नहीं है. निधि, आगे चलें फिर. निधि, निधि आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, now let me move to the next point. So some points, some important points are here. A grammar which is left recursive or right recursive is always unambiguous. तो अगर से ग्रामर है जो लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है ना, तो वो क्या होगी? अनएम्बिगुअस होगी. एग्जांपल S to AS and B, it means it is unambiguous because it is, क्या है ये बताइए निधि, ये लेफ्ट रिकर्सिव है राइट रिकर्सिव, क्या है? फर्स्ट ग्रामर निधि, this one is left Sir, recursive or right recursive? right recursive. Right recursive, yes. And this one? Left recursive. Left recursive, yes. So these two grammars are unambiguous. Then 2 point, the grammar which is both left recursive and right recursive, it is always ambiguous. So here you can see E to E plus E. So this grammar is what? Left as well as right recursive. दोनों ही है. So because you can see the left in the right hand side, leftmost symbol. Let me use again annotation. The leftmost symbol, this one. In the right hand side, the leftmost symbol is same as this, and also rightmost symbol is same as this. So this is what? Unambiguous grammar. Okay. Next point. Left recursive grammar is not suitable for the top-down parser. We will see later why it is not suitable. This is because it makes parser enter into the infinite loop. To avoid this situation, it is converted into an equivalent right recursive grammar. And I told you how convert a left recursive grammar into right. ये मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है. This is done by limited left recursion by left. ये पढ़ा चुका हूँ ना मैं, क्यों? इससे पहले पढ़ाया मैंने, ये आपको देखा होगा पॉइंट. इस वन ambiguous grammar, then conversion, elimination. Yes, okay. यहाँ पर ये पढ़ा है. So now this is the difference between ambiguous and unambiguous grammar. तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, और इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. जो मैंने बताया सारी चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे. ये एग्जाम्पल है आपका ambiguous and unambiguous grammar का. Then checking whether a given grammar converting ambiguous grammar into unambiguous grammar. कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, फर्स्ट लेफ्ट रिकर्सन. तो कॉमन causes such as left recursion, common prefixes, etc. makes the grammar ambiguous. So why we are converting unambiguous grammar to ambiguous grammar? कौन बताएगा? Why it is a need of converting? इसका क्या advantage disadvantage है ambiguous grammar? बताइए. Anyone? जैसे मैंने कहा 2 + 3 × 5, ये तो है. तो अगर से इसको एक्सपेंड, इसको हमने, इसका आंसर कितना आएगा? यस, बताइए इसका आंसर कितना होगा? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए. 25. 25. ओके 25. ओके करेक्ट. और कुछ आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर क्या हो सकता है? 30 हो सकता. अच्छा हाँ. तो अब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
फर्स्ट वन इज द प्रेसिडेंस रूल, पढ़ा होगा आपने, क्यों? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो कौन से ऑपरेटर का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है? तो आपने पढ़ा बोर्ड मास, पढ़ा ना बोर्ड मास, ब्रैकेट्स ऑफ, Sir. देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये आप फिफ्थ क्लास में से पढ़ के आएंगे बोर्ड मास। तो ऐसे ही यहाँ पे वो भी क्या करता है, वो कहता है कौन से ऑपरेटर का पहले एग्जीक्यूशन होना है। तो यहाँ भी हमें, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय कंपाइलर नॉट बाय ह्यूमन, तो कंपाइलर को हमको बताना पड़ेगा कि दिस ऑपरेटर हैज एन हाईएस्ट प्रेफरेंस ओवर द अदर ऑपरेटर। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड वन, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है, तो जानता है, बताएगा? एसोसिएटिविटी बताइए, कौन बताएगा एसोसिएटिविटी? एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे प्लस है, तो प्लस ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएट, स्टार मल्टीप्लिकेशन, तो दिस ऑपरेटर इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटेड। तो जैसे मैंने कहा 2, अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले प्रेसिडेंस किसका, स्टार का पहले, तो 5 into 3 15 हो जाएगा, दिस वन इज करेक्ट। और एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये कहा आपसे पावर, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 का 2 ले लेते, तो इसका आंसर कितना आएगा, कौन बताएगा? बताएं कितना इसका आंसर होगा, कौन बताएगा? अरे ये बता नहीं पा रहे आपको, राजू सफर, राजू सफर, बताएं बेटे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2 to the power 3 to the power 2? दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एसोसिएट। तो पावर जो होता है हमारा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 पावर 3 पावर 2, ये राइट एसोसिएटिव होता है। क्यों राइट एसोसिएटिव? जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5, तो इट इज लेफ्ट, मतलब पहले लेफ्ट वाला प्लस होगा, फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर राइट प्लस होगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे क्या राइट, तो पहले क्या होगा, पहले ये होगा 3 to the power 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, एंड 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, जो वैल्यू आए यहाँ, क्लियर है? सो एसोसिएटिविटी हुई, क्या हुई, मतलब इसका है, हाँ जो भी आए, जितनी वैल्यू आएगी। सो एसोसिएटिविटी क्लियर है, क्यों? इज क्लियर? एसोसिएटिविटी इज क्लियर नॉट? नहीं क्लियर हुआ अभी भी? अच्छा जैसे ये मान लीजिए 2 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 6, इसका इसका आंसर कितना आएगा बताइए, बोलिए, बताइए कितना आएगा? कौन बताएगा? 10 आएगा सर, 10। कितना आएगा? पहले कैसे, पहले आपने किसको किया, सबसे पहले क्या इवेल्यूएट किया आपने, बताइए, सबसे पहले आपने क्या इवेल्यूएट किया, Sir, कौन 12 बताएगा? आएगा। सर मैंने 2 - 3 -1 आ गया। सबसे पहले एडिशन होगा, बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन होगा तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 11। और -1 + 5 + 4 हो जाएगा, -1 अब क्या होगा, then 4 + 6 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ये क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव होना ये, तो मतलब ये कि लेफ्ट का मतलब ये कि पहले इसको तो -1 लेफ्ट लेना, तो दो two things are important. My whole point is for telling these example, if you know the precedence rule, means operator precedence and associativity rule, then you can easily compute the expression. ये आप कर सकते, ठीक है? तो प्रेसिडेंस का मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, क्या होगा, तो जैसे ये आपका, और एक एसोसिएटिविटी से अब ये आपका था, ये क्या है, राइट एसोसिएटिव, ये क्या है, पावर क्या है, राइट एसोसिएटिविटी, यानी पहले राइट वाला लेगा, फिर बाद में राइट से चलेगा ये,
ठीक है, 3 की पावर 2 देन 2 की पावर जो भी आया है, ये क्या चलेगा, लेफ्ट से चलेगा। क्लियर है? तो अब इसी को हमको दूर करना है। तो एम्बिग्विटी कब दूर होगी, जब हम ये दोनों चीजें डिफाइन कर दें कंपाइलर में कि ये ऑपरेटर है, इसका अगर से अवेलेबल एक्सप्रेशन में तो ये पहले होगा और इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट है राइट। अब देखते हैं एग्जांपल से क्या होगा। तो द रिमूवल ऑफ दीज रीजंस may convert the grammar into unambiguous grammar. However, it is not always compulsory. ऐसा नहीं कि हमेशा ही करेगा, but करता है। It is not always possible to convert an ambiguous grammar into an ambiguous. तो क्वेश्चन अगर से पूछता है आपसे इंटरव्यू में कोई, is it possible to convert ambiguous grammar to unambiguous? Yes, it is possible, but it is not always possible. The ambiguity from the grammar may be removed by using the following method: by fixing the grammar, by adding grouping rules, by using semantics and choosing the parts that makes the most sense, by adding the precedence rule or other context sensitive parts to the rule. So by first method हम आते हैं removing ambiguity by precedence and associativity rule. So the ambiguous grammar may be converted into an unambiguous grammar by implementing precedence constraints and associativity constraints. These constraints are implemented using the following rule. Rule was first क्या है देखिए, the precedence constraint is implemented using the rules which is mentioned below. The level at which the production is present defines the priority of the operator contained in it. इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप चेक करेंगे एग्जाम्पल। The higher the level of the production, the lower the priority of the operator. तो ऑपरेटर की priority डिसाइड करेंगे हम लेवल से, वो किस लेवल पे, अगर से वो ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल के बिल्कुल करीब में है तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ही लो है, और अगर से वो नीचे वाले लेवल पे आ रहा है उसकी प्रायोरिटी बहुत ही हाई। जैसे रूल 2, द एसोसिएटिविटी कॉन्स्ट्रेंट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग रूल। इट इज इधर लेफ्ट एसोसिएटिव देन वी यूज लेफ्ट रिकर्सन, अगर से राइट एसोसिएटिव है तो वी यूज राइट रिकर्सन। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, all these operators are left associative, then for these we use left recursion। and for exponential operator जो आपका है वो क्या है, आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, राइट रिकर्सिव। तो हम ग्रामर जब डिसाइड करेंगे तो ग्रामर के अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्शन सेट ऑफ रूल्स। तो ये दो चीजों को ध्यान में देकर रखें कि पहले क्या एग्जीक्यूट होना है, अगर से उस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को सेम लेवल पे रख देंगे, मल्टीप्लिकेशन को उससे नीचे लेवल पे, बिकॉज वाई, जितना लेवल नीचे जाएंगे उतना उसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, हाई होती है। एंड एसोसिएटिविटी क्या होगी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट रिकर्सिव यूज कर लेंगे, राइट राइट। इसे एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो r to r plus r to r dot r, then r star, it is a clean star, जो पढ़ा होगा आपने ऑटोमेटा में, then terminal symbol a and b. So where star is a clean closure and dot is a concatenation and plus is a union, हमने प्लस लिखा नहीं है, प्लस आप यूनियन कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब इसे कैसे, ये हमारी एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें किसका प्रेसिडेंस बहुत हाई है, बताइए सबसे पहले कौन बताएगा। सबसे पहले प्लस, डॉट और क्लीन स्टार, इसमें किसका प्रेसिडेंस हाई है, clean closure. yes. So to convert the given grammar into corresponding ambiguous, we have two constants. So we have given the grammar consists of following operators plus dot clean closure। तो तीन चीजें आपको दी हुई, तो स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा सही तरीके से। गिवन ग्रामर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेंड्स, क्या क्या है ऑपरेंड्स, ए बी। ऑपरेटर बताओ ए प्लस बी है तो ऑपरेटर इज द प्लस एंड ऑपरेंड्स आर ए एन, तो ऐसे यहाँ पे दो ऑपरेंड्स। द प्रायोरिटी ऑर्डर इज व्हाट, सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेंड्स आएंगे, उसके बाद क्लीन क्लोजर जैसा कि बताया अभी, देन कॉन्कैटिनेशन एंड देन यूनियन और एडिशन। क्लियर है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपाइलर को कोडिंग कर पाएंगे, ये ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट वन इज द ऑपरेंड ए कॉमा बी, ये पहले आएगा, आफ्टर दैट क्लीन क्लोजर। तो अब ये बताइए लोवेस्ट लेवल पे क्या आएगा, ग्रामर जब रूल लिखेंगे आप तो लोवेस्ट लेवल पे क्या आएगा, यस ए और बी आएगा, उससे ऊपर क्या आएगा, क्लीन क्लोजर,
उससे ऊपर क्या आएगा? कॉन्केटेनेशन, एंड द अबव कॉन्केटेनेशन इज यूनियन और प्लस। इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब देखिए एग्जांपल में अब हम आके दिखाते हैं आपको कैसे। वेयर डॉट ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएटिव, तो हमने पहले क्या बना लिया? दो चीज बनानी थी, हम प्रियोरिटी बनानी थी तो हमने प्रियोरिटी लिख लिया। नाउ एसोसिएशन लिखेंगे, तो डॉट मींस कॉन्केटेनेशन इज अ लेफ्ट एसोसिएटिव, प्लस इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव। हाँ, अब देखिए, तो अब यहाँ पे आएंगे तो ई टू ई प्लस टी टी, तो सबसे लोवेस्ट कौन था हमारे पास? यहाँ देखिए प्लस था ना, सबसे लोवेस्ट क्या है बताएं? प्लस ही तो है नहीं? तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ वही चीज लिखा है मैंने, तो एनिमेशन लगाने में मिस्टेक हो गई है, आप समझिएगा। तो प्लस आ गया पहले, तो ई टू ई प्लस टी एंड देन टी, देन उसके बाद क्या आना चाहिए? कॉन्केटेनेशन, तो टी टू टी डॉट एफ, देन एफ, एफ के बाद क्या आएगा? क्लीन क्लोजर एंड देन ऑपरेंड। देखा आपने, सबसे नीचे क्या आया हमारा? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी हमारी? ऑपरेंड की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, तो सबसे नीचे लेवल, ये लेवल 1 अगर से है, लेवल 2, call this level 3, and the last level is level 4. So the priority of operands is higher than the every other operators, so this is level 4. Now clean closure is more priority compared to concatenation and addition, then level 3, level 1, level 2, level. Clear है? Yes, clear है बेटा? ये नहीं बेटा, हाँ या ना कुछ तो बोलो, तभी तो आगे चलेंगे, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन। ओके ओके, तो देखिए तभी मैंने बताया आपको कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट है बताइए? एम्बिग्यूटी के लिए क्या 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 दो चीज इंपॉर्टेंट है? ये समझ में आया आपको? दो चीज इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यस, एक तो प्रेसिडेंस रूल और दूसरा क्या? एसोसिएटिविटी रूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। तो अब एसोसिएटिविटी रूल पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो गिवन ग्रामर में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे जो ग्रामर गिवन है, ये जो ग्रामर गिवन है, यहाँ पे एक तो प्लस ऑपरेटर है, एक आपका कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, और ये क्लीन क्लोजर है, और बाकी ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर पहले हम करेंगे, प्लस क्लीन क्लोजर कॉन्केटेनेशन। तो इसका जो प्रायोरिटी डिसाइड है पहले से, क्लीन क्लोजर पहले होगा, उसके बाद कॉन्केटेनेशन होगा, उसके बाद एडिशन और यूनियन, और इन सब से पहले क्या होगा? ऑपरेंड्स होगा। तो ये पहले ये दोनों एक साथ रहेंगे, एक लेवल पे रहेंगे। इसके बाद क्लीन क्लोजर, इसके बाद डॉट कॉन्केटेनेशन, एंड इसके बाद प्लस। यहाँ से क्लियर है? क्यों ये क्लियर है ना? ये आपको एग्जाम में गिवन होगा ना, ये सारी चीज एग्जाम में गिवन होगा। ये तो प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स, तो आपने ऑपरेटर आइडेंटिफाई कर लिए, एंड ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं? तो ऑपरेंड्स इज ऑलवेज एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद क्लीन क्लोजर, कॉन्केटेनेशन एंड एडिशन। क्लियर है यहाँ तक? बताएं। Yes, sir. अब उसके बाद आएंगे एसोसिएटिविटी पे। तो एसोसिएटिविटी में क्या है? क्लीन क्लोजर तो एक ही ऑपरेंड है, इसका क्या एसोसिएटिव करना? आपका कॉन्केटेनेशन लेफ्ट एसोसिएटिव, एडिशन लेफ्ट एसोसिएटिव। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा ना। स्टार्टिंग सिंबल से करीब में कौन रहेगा? प्लस रहेगा। तो स्टार्टिंग सिंबल हमारा यह आर था, हमने यहाँ ई ले लिया, कोई सब सॉरी तो ई लिया हमने, दिस इज अवर स्टार्टिंग सिंबल। तो सबसे करीब क्या रहेगा? प्लस। अब प्लस क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव है ना। प्लस क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब क्या होगा? लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो होगा वो क्या होगा? इसके बराबर होगा ई के। अब प्लस आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है? क्यों बेटे, ये क्लियर हुआ कैसे लिखा हमने? Yes, sir. अब उसके बाद हमें फिर स्लैश टी कर
अब प्लस के बाद क्या है, कॉन्कैटिनेशन आएगा, तो कॉन्कैटिनेशन नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, तो टी से स्टार्ट करेंगे हम। और इसका भी क्या है, लेफ्ट, ये भी क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव, ये भी लेफ्ट है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा एंड कॉन्कैटिनेशन का सिंबल और फिर एफ पे चले जाएंगे। अब इसके बाद क्लीन क्लोजर की प्रियोरिटी ज्यादा है, तो ये और नीचे जाएगा, एफ से क्या लिख देंगे, ये भी लेफ्ट लेफ्ट एसोसिएटिव है, एंड देन जी, और जी से क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट प्रियोरिटी ऑपरेंट की है, तो ये काम किया, ये हुआ हाउ वी राइट unambiguous grammar for a given ambiguous. Now it's clear. First, we identify the precedence of operators. तो प्लस सबसे ऊपर आएगा, तो सबसे शुरुआत प्लस की हुई, अब प्लस का एसोसिएशन क्या है, लेफ्ट है, तो जो सिंबल यहाँ आएगा भाई सिंबल यहाँ आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, कॉन्कैटिनेशन, तो टी से हमने स्टार्ट कर दिया कॉन्कैटिनेशन, और एफ, एफ के बाद क्या आएगा, क्लीन क्लोजर, और फिर जी, और जी से क्या आ जाएगा, क्लियर नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ, बताएं आप लोग, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे परेशानी रिपीट करने में नहीं है, बताइए यस या नो, बताइए। क्लियर है सर, यस सर। यहाँ लिखा हुआ, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ, रूल्स में आइए, द प्रेसिडेंस कांस्टेंट क्या होता है, द लेवल एट विच द प्रोडक्शन इज प्रेजेंट डिफाइंस द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर, तो हायर द लेवल लोअर द प्रायोरिटी, लोअर द लेवल हायर द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है, तो लेवल जितना हाई होगा प्रायोरिटी का ऑपरेटर उतना लो होगा, और तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ ना, मैं हम आगे चलते हैं, कि कोई बात, इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आया तो मुझसे खुद पढ़िएगा, तो खुद से कीजिए तो समझ में आ जाए। ओके सर। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए और लिखा हुआ मैंने ना, एफ एफ में ही हम क्या यूज कर सकते हैं, ए बी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन, यानी इसको हम रिपीट कर सकते हैं, ए बी को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे, जी को हटा के कहाँ, यहाँ कर, वो कर सकते हैं आप, दोनों दोनों ही सही। नाउ प्रॉब्लम 2 क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन, बी स्टैंड्स बी एक्सप्रेस बूलियन एक्सप्रेशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स, एंड और का मतलब और ऑपरेशन, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट। तो इसमें क्या होता है बताइए, सबसे पहले क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होगी इसकी, सबसे पहले किसकी आई होगी प्रायोरिटी, कौन बताएगा, इसमें प्रेसिडेंस रूल क्या होगा, सबसे पहले कौन एक्सिक्यूट होगा, अगर से आपको एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले किसको एक्सिक्यूट करेंगे आप, बताइए। एंड होगा सर। अरे नॉट होता है, नॉट एंड और होगा, और नॉट एंड और, ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो हमारा सिंबल टर्मिनल है वो तो रहेगा रहेगा रहेगा, पहले हमारा जो टर्मिनल सिंबल हमारा है वो तो रहेगा ही, ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या है हमारा टर्मिनल सिंबल, टी और एफ, तो ये हमारा पहले रहेगा एक लेवल पे, फिर नॉट आएगा, फिर एंड आएगा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है प्योरिटी ऑर्डर, यस, आगे चले हम, बताइए, अरे हाँ है ना, कुछ यस तो सर। बोलिए। देन एसोसिएटिविटी क्या, एंड क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव, और क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव, और नॉट सिंगल है, सिंगल ऑपरेटर कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, और आएगा, है ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, और ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन टू बूलियन एक्सप्रेशन, तो लेफ्ट एसोसिएटिव है, और एम, एम इज ए अल्फाबेट है जो हमारा अभी आगे वेरिएबल है, फिर एंड आएगा, फिर नॉट आएगा, जी आर, यहाँ से ट्रू फॉल्स, क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप सेम थिंग है। अब यहाँ पे आपने देख लिया ऑपरेटर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट था, तो हमने इसको ऐसे किया, ठीक है, यस, इट क्लियर, आगे चलें, या हम और भी कर सकते थे, लास्ट वाले को सिंबल को हम एक साथ कर सकते हैं,
नाउ देयर आर टू मेथड्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड टॉपिक है इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन गिवन ग्रामर. तो एक बार जाइएगा थोड़ा सा नेट पे सर्च करके सारे एक्सरसाइज कीजिएगा, हाउ कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर अनएम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस, है ना, एम्बिग्यूटी को कैसे अनएम्बिग्यूटी में कन्वर्ट किया जाए. तो दो मेथड है आपके इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ इफ ग्रामर इज गिवन देन हाउ कैन वी इवैल्यूएट एक्सप्रेशन. तो ड्राइंग ए पार्स ट्री और डिजाइनिंग ए रूल्स फॉर ऑपरेटर. देखते हैं क्या करके. ड्राइंग ए पार्स ट्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, आप ड्रा कर सकते हैं इजीली, ग्रामर गिवन है तो. Then evaluate the parts tree to get the required value for the expression. Drawback क्या है, drawing a parts tree for large expression is cumbersome, it's very difficult and time taking, so this method becomes difficult to follow when the expression is large. Two क्या है, designing rules for operators. Following steps are followed. Priority first and then associativity and then parenthesis. उसके साथ अकॉर्डिंग क्या लगा लेंगे हम, पैरेंथाइज कर देंगे, है ना. पहले हमने क्या पता कर लिया, प्रायोरिटी क्या क्या है और एसोसिएशन क्या क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी पैरेंथेसाइज द गिवन एक्सप्रेशन. हम ब्रैकेट लगा लेंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व. एग्जांपल देखिए यहाँ पर है, फॉर द गिवन एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स डिसाइड बाय चेकिंग द लेवल एट व्हिच द प्रोडक्शन इज प्रेजेंट. तो आपको ग्रामर गिवन है तो उसमें लेवल भी गिवन होगा, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या चेक कर लेंगे, उसका प्रायोरिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर लेंगे, पैरेंथेसिस लगा लेंगे. तो चेक करते हैं एग्जांपल. ये एग्जांपल ग्रामर गिवन है, E इक्वल टू E इंटू F, E प्लस F एंड B एंड द ID हैज द हाईएस्ट. सब देखिए यहाँ पे क्या है, लेवल पे सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, ID, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गई. इसके बाद क्या है, माइनस, के बाद क्या होगा, ये दोनों सेम लेवल पे आ जाए. कौन कौन, स्टार और, ठीक है. आप कहेंगे सर प्लस का तो ज्यादा होता है, स्टार का ज्यादा होता है, बट जनरली स्टार का ज्यादा. बट आपने ग्रामर अगर आपको ऐसे डिजाइन, आपको अपना कंपाइलर डिफाइन करना है, आपको अपनी लैंग्वेज डिफाइन करनी है, आपको अपना रूल डिफाइन करना है, देन यू कैन यूज एनी. तो यहाँ पे हमने यूज किया इस तरह का, ग्रामर ऐसे गिवन है, तो इस केस में हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी, ID, उसके बाद क्या हुआ, माइनस, उसके बाद हमारा स्टार और प्लस सेम लेवल पे आ जाए. क्लियर है ये यहाँ तक, बताएं बेटे. Yes sir, clear. हाँ, Yes, sir. इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे. Clear, sir. ID has the highest priority, then star plus at the least priority. So the priority order is, जो मैंने लिखा था वही चीज ध्यान है ना. लास्ट लाइन देखिए, एक्सप्लेन कर दिया हम लोग को, यहाँ लिख दिया. नाउ रूल फॉर डिजाइनिंग एसोसिएटिविटी क्या होगा, तो फॉर द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर. अब देखिए द एसोसिएटिविटी रूल इज डिसाइडेड बाय टाइप ऑफ रिकर्सन. लेफ्ट होगा तो लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट होगा राइट. इफ द प्रोडक्शन इज लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट है तो राइट एसोसिएटिव हो जाएगा. अब देखिए E इंटू F, F E प्लस ये दिया हुआ था हमको, हमारा पहला एग्जाम्पल था. अब E इंटू F, तो प्लस स्टार क्या है, देखिए हमारा स्टार, स्टार क्या लेफ्ट एसोसिएटिव हुआ, बिकॉज लेफ्ट एसोसिएटिव है. प्लस क्या है हमारा, बताइए कौन बताएगा, प्लस क्या है, लेफ्ट या राइट, राइट. राइट, वेरी गुड. एंड माइनस, माइनस लेफ्ट. बोथ लेफ्ट एंड राइट, है ना, लेफ्ट. बोथ है ना. यस सर. तो ऐसे बहुत इजी है, बहुत करना इजी लिखा, बोथ लेफ्ट एंड राइट रिकर्सन. अब एग्जांपल अब हमें पहले हमने बता दिया क्या कैसे कैसे करेंगे, अब हम एग्जांपल करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं. तो अब इसको हमको इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द गिवन ग्रामर. अपने से नहीं करना है ना, जो ग्रामर गिवन उसके अकॉर्डिंग करना है. तो 2 + 3 × 5, तो पहले क्या करते हैं, अगर से आप ग्रामर ना गिवन तो क्या करते हैं आप, पहले मल्टीप्लाई करते. तो 5 × 6 = 30, 33 × 90, 90 + 2 92, 94 आता है या नहीं, यही तो आता. Here the order is different because grammar is different. तो जैसा देश वैसा भेष, ठीक. तो यहाँ पे ग्रामर अकॉर्डिंग करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, पार्ट्स टी से पहले कर लेते हैं. ये हमारा E to E + T, E to E + T ऐसे किया हमने सारा चीजें करके. तो यहाँ से अब क्योंकि हमारा क्या था,
टू प्लस यानी आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी, यही था हमारा एक्सप्रेशन। तो हमने बताया था कैसे एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं, इसे ड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर 94। I told you how to draw a parse tree for a given string if a grammar is given। ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आता हूँ इस पे। ये हमारा प्रायोरिटी था आईडी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा 94, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1 प्लस 4, एरो मतलब पावर, एरो मतलब क्या था पावर, एक्सपोनेंट। इसको बताना है हमको, बाई पार्ट्स की से बताएंगे तो इसका वही है, ये पार्ट्स की बन जाएगा एंड देन इसका इवेल्युएट कर लीजिए। और ये हमारा क्या है ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर पहले आईडी का होगा, फिर एक्सपोनेंट ज्यादा पावरफुल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम लेवल पे है, प्लस और माइनस सेम लेवल पे है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, प्लस माइनस सेम लेवल पे है, स्टार और डिवीजन सेम लेवल पे है, एक्सपोनेंट नेक्स्ट लेवल पे। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आईडी की है, उसके बाद एक्सपोनेंट की है, फिर स्टार और डिवीजन सेम लेवल पे है। इसको मैंने इवेल्युएट कर दिया है। अब इसमें क्या है प्लस माइनस स्टार डिवीजन ऑल आर लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स एंड द एक्सपोनेंट इज राइट। लगा दिया, क्लियर। तो एक बार ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा आपको अभी, इसको आप देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं समझ में आएगा 0 मार्क्स दे दिया। देन प्रॉब्लम 3, ये इसका एक्सप्रेशन है, हमने आपको यहाँ सॉल्व किया सारी चीजें। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है। इजी है, टफ नहीं। ये आपका होमवर्क का आंसर इतना आएगा जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, देखिए इतना आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए आप उल्टा चलेंगे, प्रायोरिटी गिवन है, ग्रामर डिजाइन करना है ना। कंसीडर द प्रायोरिटी, और हमें अब क्या डिजाइन करना है, ग्रामर डिजाइन करना है। अभी तक क्या था, ग्रामर गिवन थी, प्रायोरिटी हमको डिसाइड करनी थी। अब प्रायोरिटी गिवन है, ग्रामर डिसाइड करना है, ड्रॉ करना है। तो कैसे होगा देखिए। तो गिवन ऑल द ऑपरेटर्स आर लेफ्ट एसोसिएटिव, कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग ग्रामर। ये हमको बनाना है, हमको ग्रामर बनाना है। तो अभी तक क्या था, ग्रामर इज गिवन एंड वी हैव टू कंप्यूट द expression or value corresponding to given expression, but here priority order is given and operators associativity rule is given। तो priority order is given of the operator, and तो यहाँ क्या दिया, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सब के सब क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव, यहाँ गिवन है। टू थिंग्स आर गिवन, फर्स्ट वन इज द लेफ्ट एसोसिएटिव एंड सेकंड वन इज द प्रायोरिटी, ये गिवन। तो नाउ हमको ग्रामर कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आईडी, तो सबसे नीचे क्या आएगा आईडी, उसके बाद क्या आ जाएगा स्टार डिवीजन सेम लेवल पे आ जाएंगे, और उसके बाद प्लस और स्टार सेम लेवल पे आ जाएंगे, और सब लेफ्ट एसोसिएटिव लेफ्ट। सबसे पहले क्या आएगा स्टार और माइनस आएंगे। देखिए आ गए ना स्टार माइनस, आया नहीं है, क्लियर है क्यों बेटे, क्लियर है ना। यस सर। फिर उसके बाद क्या आएगा यस स्टार डिवीजन, फिर आईडी आ जाएगी, और ऑल आर लेफ्ट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट में क्या है, पहले ई के बाद ये आएगा, फिर ई के बाद आई ई माइनस, तो लेफ्ट एसोसिएटिव। देख ली सब लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। यहाँ भी क्या है वही चीज। अब पॉइंट क्या देख सकते हैं, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक पार्ट्स की corresponding to each leftmost derivation and rightmost derivation. If n parts key exist for given string, then there will be n corresponding leftmost derivation and n corresponding right. ठीक है। Now we are summarizing the point जो मैंने पढ़ा है। For ambiguous grammar, more than one leftmost derivation and more than one rightmost derivation exist for at least one string. ठीक। LMD and RMD represent different parts. For
unambiguous grammar, a unique leftmost derivation and a unique rightmost derivation exist for all the leftmost derivation and rightmost same part. तो मैंने बताया था कि एम्बिग्यूटी चेक करने के लिए क्या पार्सिटी ड्रा के लिए अगर दो डिफरेंट पार्सिटी आते हैं तो ग्रामर आपके एम्बिगुअस है, और अगर से यूनिक पार्सिटी आता है, दोनों एलएमडी आरएमडी दोनों सेम आते हैं तो क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस हो जाएगा ग्रामर. There may exist derivation for string which are neither leftmost nor right. ये हो सकता है कि जाहिर सी बात ना तो ये leftmost है तो right. A B C it is neither leftmost nor right because left in the right hand side leftmost variable is not same as the what the symbol at the left hand side and rightmost. यहाँ पे leftmost में क्या है, A है तो A is not equal to S and C is not equal to. अब यहाँ दिखा हुआ देखिए, कंसीडर SMW ABC दैट टोटल 6 डेरिवेशन एग्जिस्ट फॉर SMW. द फॉलोइंग 4 डेरिवेशन आर नीदर लेफ्ट मोस्ट नॉर राइट. ये आपको देखिए ABC है तो यहाँ पे आपका ये तो ना तो लेफ्ट मोस्ट है तो राइट. ये सब चीजें एक बार पीपीटी में शेयर करूंगा, सब आप देखिएगा, ऑटोमेटा का पार्ट है ये सारी चीजें, ठीक है. तो ये सब चीज सब देख के बताइए. तो ये सारे पॉइंट आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है. मैंने जो पढ़ाया उसकी समरी है यहाँ, ये डिफरेंस क्लियर है. ये क्यों बेटे किसी कुछ देखिए आपको समझ में आ नहीं रहा है तो आप पढ़िए, मुझसे पूछिए, पूछेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पूछेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है. Yes, sir. तो आपको पूछना पड़ेगा, पीपीटी में अभी शेयर कर दूंगा फौरन क्लास के बाद. तो कल क्लास में 1 बजे तक फिर होगी हमारी, सब लोग टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है. Okay. तो का जो है कल फ्राइडे है ना सर? तो फ्राइडे है तो कल टाइमिंग क्या कर लें बताइए. सर और पहले कर लीजिए. सुबह में कर लीजिए सर, सुबह में. अच्छा कल अना मैम क्लास है यस सर. कितने बजे है? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, कल क्लास जो है ठीक है, कल काम मैं बता दूंगा, कल क्लास कर दूंगा, टाइम दे दीजिए, ठीक है. यस सर. थैंक यू ओके सर. सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.